Hello students, welcome again to my YouTube channel. Students, we have learnt about four kinds of adjective: adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number and demonstrative adjective in the previous videos or in the previous class. Okay, today in this session we are going to learn about interrogative adjective. This is the fifth kind of adjective. Which adjective? Interrogative adjective. So as you know that what is the meaning of interrogative? Interrogative means question. Okay. So read the following sentences first. What animal is that? Next is whose book are you reading? Next sentence is which dress do you want? So the words what, whose and which are adjectives since they describe animal, book and dress respectively. As they ask questions, these adjectives are called interrogative adjectives. So these are three sentences. First is what animal is that? Next is whose book are you reading? And third sentence is which dress do you want? In these sentences, these words like what, whose and which are adjectives. These are adjective. Why? Because they came just after these nouns animal, book and dress. क्योंकि ये जो what, whose and which words हैं ये हमारे ये जो nouns हैं animal, book and dress इनको डिस्क्राइब करने का वर्क करें, क्वालिफाई करने का वर्क करें. ठीक है. सो the words what, whose and which are adjectives since they describe the word watch describes the word animal and whose describe the word book and dress respectively, means which describe the word dress respectively. So as they ask questions, these are question words. You know that these are question words. So as they ask questions related to these nouns, these adjectives are called interrogative adjective. क्योंकि इन adjectives का यूज हम लोग उस noun से related किसी question को पूछने के लिए कर रहे हैं. So they are interrogative adjective. Now look at the definition of interrogative adjective. An interrogative adjective is an adjective which asks a question. For example, what, whose and which are interrogative adjectives. बेटा आपको ध्यान रखना है कि सारे interrogative words हमारे interrogative adjective नहीं होते हैं. For example, whom, ठीक है, where, ये सारे adjective क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके just बाद में कोई noun word नहीं आता है. जैसे हम लोग अगर where का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? Where is your father? या फिर पूछेंगे where do you live? तो where वर्ड के बाद में कोई ना कोई वर्ब वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है ना. ठीक है. तो ये एडजेक्टिव सारे ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं. ये हमारे हैं what, whose and which. These words are interrogative adjective because they take noun just after them. क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के बाद में हम लोग just इन वर्ड्स के बाद में किसी noun word का यूज कर सकते हैं. So they are interrogative adjectives. Okay. So remember that all interrogative words are not interrogative adjective, but what, whose and which take nouns just after them, like what animal, whose book, which dress. ठीक है. तो इनके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन वर्ड आ रहा है तो ये हमारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ओके. बट हमारे जो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं लाइक वेयर, हुज, हाउ, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं. जो ये वर्ड्स हैं हमारे व्हाट, हुज एंड विच, ये भी वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. ठीक है. तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है एंड कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. इसके लिए मैं एक आपको दूसरा वीडियो सेंड करूंगी. ठीक है. एक दूसरा वीडियो मैंने सेंड किया है, आपको अपलोड किया है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन.
ठीक है। तो मैं आपको वो वीडियो शेयर करूँगी, आप वो वीडियो अच्छे से वॉच करिए जिससे कि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए कि कब ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो बेटा उस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिएगा जिससे कि आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो जाए और आप लोग एग्जाम में मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, नाउ कम एट दी पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव मीनिंग यू ऑल नो, आपको पजेसिव का मीनिंग पता है क्योंकि आप लोग पजेसिव नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो पजेसिव मीन्स क्या होता है, मीन्स ओनरशिप। जब हमारा किसी भी थिंग पे, किसी भी नाउन पे हमारा अधिकार होता है, ओनरशिप होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पजेसिव। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, so read the following sentences. First is, my book is lying on the table. My book is lying on the table. Here the word my, it tells us whose book. अब ये बोल रहा है माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो माई वर्ड जो है वो ये बता रहा है, ये बताता है कि हुज बुक, किसकी बुक, माई बुक, योर बुक, हिज बुक। ठीक है, तो जो हमारी वर्ड से माई, इसे क्या शो हो रहा है, पोजीशन और ओनरशिप। ठीक है, कि मेरी बुक, उसकी बुक, तो जिसकी बुक है उसकी उस बुक पे ओनरशिप होगी ना, पोजीशन होगा। सो दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज, दे सोल्ड देयर हाउस। दे सोल्ड देयर हाउस। अब यहाँ पे जो वर्ड हमारा देयर है, दैट टेल्स अस हुज हाउस, किसका हाउस, उसका हाउस, मेरा हाउस, उनका हाउस, किसका हाउस। सो हुज हाउस, देयर हाउस मीन्स उनका हाउस। ठीक है, तो देयर वर्ड जो है वो क्या हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इससे हमें हाउस पे पोजीशन शो हो रहा है। इज इट क्लियर? सो माई एंड देयर आर एडजेक्टिव्स. माई टेल्स अस दैट द बैग बिलोंग्स टू मी और इज possessed बाई मी. माई एंड देयर आर एडजेक्टिव्स. ठीक है, यहाँ पे जो माई वर्ड है वो टेल्स अस द बैग बिलोंग्स टू मी. बेटा बैग नहीं, यहाँ पे बुक होगा. ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक बैग आपका लिख गया है ना, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका बुक वर्ड था ना, तो यहाँ पे बुक होगा, बैग नहीं होगा. ठीक है, तो माई टेल्स अस दैट द बुक बिलोंग्स टू मी, कि माई ये बता रहा है कि वो बुक मुझसे संबंधित है, मतलब मेरी बुक है. और इज possessed बाई मी, और वो उस पर मेरा अधिकार है. एंड देयर हाउस मीन्स द हाउस possessed बाई देम. और देयर जो वर्ड है वो हमें ये बताता है कि जो हाउस है वो उनसे उस पर उनका अधिकार है. एंड और बिलोंगिंग टू देम, और वो हाउस उनको बिलोंग करता है, मीन्स उनसे संबंधित है. सो these adjectives show possession or belonging and are called possessive adjectives. So the adjectives my and their show possession or belonging and are called possessive adjectives. ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि possessive adjectives क्या होते हैं. And definition is, a possessive adjective is an adjective that shows possession or belonging. Example, his, her, our and your. So, and it answers the question whose. जो हमारे possessive adjective होते हैं वो एक ऐसा adjective है जो ये शो करता है, क्या शो करता है, पोजीशन और बिलोंगिंग. किसी भी थिंग पे हमारा पोजीशन मीन्स अधिकार, या फिर वो थिंग हमसे संबंधित है मीन्स बिलोंगिंग, तो इसको शो करता है. एंड फॉर एग्जाम्पल हिज, हर, आर, योर, माई, देयर, दीज आर possessive adjective. Okay, now possessive adjectives answer the question whose. possessive adjective किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, whose. He means किसका. Is it clear? Now come at the exercises related to possessive adjectives. So first is, underline the interrogative adjectives. Beta we have learnt about interrogative adjective also. ठीक है,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज underline the interrogative adjectives and circle the possessive adjectives in the following sentences। आपको interrogative adjective को क्या करना है, underline, और possessive adjective को क्या करना है, circle। ठीक है, so let's start। Children, open page 15 of your English book। Now tell which word is adjective here, your। क्योंकि योर के जस्ट बाद में देखिए इंग्लिश बुक आ रहा है जो कि नाउन है, तो योर हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में हमें क्या करना है, सर्कल, तो हम लोग इस पे क्या कर देंगे, सर्कल। नेक्स्ट इज हुज बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, हुज, क्योंकि हुज के जस्ट बाद में नाउन वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो whose with adjective, this is interrogative adjective because it is used here to ask question related to this book। so whose is interrogative adjective। interrogative adjective पे क्या करना है हमें, underline, so underline it। next is my pet is not well। which word is adjective here, my। ठीक है, my का यूज यहाँ पे परेशान शो करने के लिए कर रहे हैं ना, तो my is word is adjective here। और which adjective is this, this is possessive adjective, तो इस पे क्या करना है हमें, सर्कल, सो इस पे सर्कल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज which insect is crawling on my pencil। here two adjectives are given in the sentence। देखिए which insect, which के बाद में भी इंसेक्ट वर्ड आया हुआ है जो कि नाउन है, और my के बाद में भी पेंसिल बॉक्स आया हुआ है जो कि नाउन है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे एडजेक्टिव हैं जो किसी को नाउन को क्वालिफाई करने का वर्क कर रहे हैं। बट विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एंड माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये पजेशन शो करने का वर्क कर रहा है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे अंडरलाइन करेंगे और माई पे क्या करेंगे, सर्कल, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज विच ड्रेस डू यू लाइक द बेस्ट। विच ड्रेस डू यू लाइक बेस्ट। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, विच। ओके, क्योंकि विच वर्ड के बाद में जस्ट ड्रेस आ रहा है एंड ड्रेस इज नाउन, सो विच एडजेक्टिव, दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सो अंडरलाइन इट। इज इट क्लियर? सो दिस फर्स्ट exercise we have completed. Now second exercise is pick the adjectives in the following story and mention their types। दिस इज अ स्टोरी गिवन बिलो, नीचे एक स्टोरी गिवन है आपकी, उसमें आपको क्या करना है, एडजेक्टिव स्पीक आउट करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड यू हैव लर्नड अबाउट ऑल द एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव। तो सारे एडजेक्टिव के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक स्टोरी आपके नीचे दी हुई है, इस स्टोरी को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और देखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और वो कौन से एडजेक्टिव हैं, मीन्स कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और उनका काइंड क्या है। ठीक है, आइदर इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी और नंबर और पजेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो वो आपको जब स्टोरी आप पूरी रीड करेंगे तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वन डे टू मर्चेंट्स नेम्ड राम एंड श्याम केम टू द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ अकबर। तो वन लाइन का हम लोग करते चलते हैं साथ में। ठीक है, तो अब इस लाइन में कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव हो, फर्स्ट इज टू वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बेटा यहाँ पे वन भी एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, क्योंकि वन का यूज भी तो डे से पहले किया हुआ है ना, और डे हमारी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे वन और टू ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और दोनों कौन से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मर्चेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी। ठीक है, और हम लोग वन ये जो डे है उनको भी काउंट कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अंडरलाइन देम एंड राइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नेम्ड राम एंड श्याम केम टू द मैग्निफिसेंट कोर्ट। अब कोर्ट को क्वालिफाई करने का वर्ड कौन कर रहा है,
मैग्निफिसेंट। तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये कोट की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अंडरलाइन इट एंड राइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटा डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स, डू प्रॉपरली, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और आप कोशिश करिए कि आप इसको स्केल से लाइन ड्रॉ करिए, जिससे कि आप लोगों की मिस्टेक्स ना हो और आपका नीट एंड क्लीन वर्क हो सके, ओके। सो ऑफ अकबर, राम सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज माई फ्रेंड श्याम। राम सेड योर मैजेस्टी, दिस इज माई फ्रेंड श्याम। यहाँ पे माई वर्ड जो है वो क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। बेटा यहाँ पे दिस वर्ड भी आया हुआ है, क्या दिस एडजेक्टिव है? नो, दिस इज नॉट एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद में देखिए वर्ब आ रही है। अगर दिस के जस्ट बाद में कोई नाउन वर्ड आया होता तो दिस भी हमारा एडजेक्टिव होता। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट दिस के जस्ट बाद में वर्ब आ रही है इज, इसका मतलब ये हमारा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैड गिवन हिम, तो माई को अंडरलाइन करिए, यहाँ पे लिखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज आई हैड गिवन हिम माई ट्रेजर बिफोर गोइंग ऑन सम वर्क in a new town. So in this sentence, my word is possessive adjective. Underline it and write adjective here. And treasure before going on some work. Some work is also adjective of quantity. क्यों? क्योंकि वर्क को हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। So some is adjective of quantity and in a new town, न्यू वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि टाउन की क्वालिटी को बता रहा है। न्यू टाउन, ओल्ड टाउन, ठीक है। तो न्यू वर्ड को अंडरलाइन करना है और क्या राइट करना है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, व्हेन आई आस्क्ड हिम टू रिटर्न दैट ट्रेजर, ही इज डिनाइंग एवरीथिंग। हियर इन दिस सेंटेंस which word is that? That के बाद में क्या है? treasure, and treasure is noun. So that is which adjective? This is demonstrative adjective. Okay, so underline it and write here demonstrative adjective. He is denying everything. Now first paragraph completed. Now come at the second. Shyam said, no, your majesty, you can check my house. Ram never gave me his treasure. He is lying. Here in this sentence, my word is possessive adjective because it came just after the noun house and it is qualifying the word this noun, ठीक है। So this is possessive adjective. So underline it right here. Next is his. अब his word is possessive adjective because it came just before treasure. So this is possessive adjective also. Now come at the next line. Akbar told his soldier to check Shyam's house in the evening. Here his is, here in the sentence his is possessive adjective. So underline it and write possessive adjective here. Next is the soldiers did not find anything. On the next day, Akbar said, we could not find anything in Shyam's house. So Ram must be lying. Birbal, Akbar's intelligent courtier, said. Here intelligent is adjective of quality, so underline it and write adjective of quality here. Your majesty, give me a chance to solve this case. Here this is adjective, and which adjective is this? This is demonstrative adjective because it came just after the noun case, and case is ये case को qualify पॉइंट आउट करने का वर्क कर रहा है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। एक्चुअली आई हैव फाउंड द ट्रेजर and I have kept it in my house. Here my is as a possessive adjective and it came just before the noun house, so this is possessive adjective. Next is I will submit it in your court tomorrow. Your is possessive adjective, so underline it and write possessive adjective here. All were surprised to hear this. This adjective है आपका यहाँ पे? No, this is not adjective. क्यों? क्योंकि this के just बाद में कोई noun word नहीं आया हुआ है. So this is pronoun here, not adjective. When the court was dismissed, Birbal asked the royal soldiers to follow Shyam in disguise. Shyam went home
and after some time he came out. He went into a deep forest and dug a place near big tree. Here the word deep is adjective of quality because it is used here to clarify the word forest. To underline it and write adjective of quality, and big is adjective of quality also because it is telling the quality of tree. So this is adjective of quality. Underline it and write here. Next is he took out a huge bag in which there were the lost ornaments. सो ह्यूज इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्योंकि ये बैग को क्वालिफाई करने का वर्क कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. एंड लॉस्ट इज ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स को क्वालिफाई करने का वर्क कर रहा है. बट दिस इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव. ठीक है, लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में अभी आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके. एंड नेक्स्ट, इमीडिएटली द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम. दे प्रोड्यूस्ड him in the court before Akbar. Birbal said, "Your Majesty, I did not find the lost treasure." Here lost is also adjective of quality, so underline it right here. I wanted to find out whether Shyam was innocent. Innocent is adjective of quality और एक किसकी क्वालिटी है? श्याम की. अब यहाँ पे देखिए innocent के बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है, बट जो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो किसी नाउन के जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके बाद में भी आ सकते हैं और उसके पहले भी. ये मैंने आपको जो आपका चैप्टर बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तभी बताया था कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की जो एडजेक्टिव हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जस्ट नाउन के बाद में भी आ सकते हैं और उस नाउन के पहले भी आ सकते हैं. ठीक है, so underline it and write it as adjective of quality. Next is, but when I said so, Shyam became anxious and went and checked the place where. Here anxious is also adjective of quality and किसकी quality है ये? श्याम की. He had really hidden the treasure, so please arrest Shyam and return this treasure to Ram. So this word is possessive adjective here. Underline it and write possessive adjective. Okay, so we have completed second exercise also. Now come at the third exercise. Now fill in the blanks with adjectives that mean the same as. यहाँ पे एक आपका phrase टाइप में दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है और फिर जो एडजेक्टिव उन्हीं के जैसे होते हैं, मीन्स जो उस क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको एडजेक्टिव यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, वन वर्ड में. फॉर एग्जाम्पल फुल ऑफ हैप्पीनेस. अब जो फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा, जो बिल्कुल हैप्पी, जो हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्पी. ठीक है, तो यहाँ पे राइट करिए. जो आपके लेटर्स पहले से ही रिटन है उन्हें आपको रिराइट नहीं करना है. जो आपकी मिसिंग लेटर्स हैं, जो फिल द ब्लैंक्स हैं, उनको आपको फिल करना है. ठीक है, सो राइट द स्पेलिंग ऑफ हैप्पी हेयर. नेक्स्ट इज फुल ऑफ कलर. अब जो फुल ऑफ कलर होगा उसको क्या बोलेंगे? कलरफुल. ओके, सो राइट द स्पेलिंग ऑफ कलरफुल. COLOURFUL. बेटा जो वर्ड्स पहले से रिटन हैं उन्हें आपको दोबारा से राइट नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक्ड बाय मैनी. लाइक्ड बाय मैनी जो सभी के द्वारा जो पसंद किया जाता हो या फिर जिसको सभी जानते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेमस या फिर पॉपुलर. तो फेमस तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? पॉपुलर. सो राइट द स्पेलिंग ऑफ पॉपुलर. POPULAR. ठीक है, नेक्स्ट इज विदाउट फियर. विदाउट फियर मतलब बिना डर के. ठीक है, तो अब जो बिना डर के हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फियरलेस. जो डरा हुआ हो उसे बोलेंगे फियरफुल और जो विदाउट फियर हो उसे क्या बोलेंगे? फियरलेस. सो FEARLESS. नेक्स्ट इज मेड ऑफ गोल्ड. जो गोल्ड से बना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्डन. ठीक है, तो राइट द स्पेलिंग ऑफ गोल्डन हेयर. GOLDEN. नेक्स्ट इज फुल ऑफ काइंडनेस. जो फुल ऑफ काइंडनेस होगा, जिसके अंदर दया ही दया हो, वो क्या होगा? काइंड. KIND. ठीक है,
नेक्स्ट इज फुल ऑफ डाउट। जो फुल ऑफ डाउट हो, जो डाउट से ही भरा हुआ हो, जिसके अंदर डाउट हो, मतलब शंका ही शंका हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउटफुल। DOUBTFUL, दिस इज डाउटफुल। नेक्स्ट इज फुल ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्टफुल हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाला हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो INTERESTING, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज विदाउट होम। जिसका कोई घर ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमलेस। ठीक है, तो HOMELESS। नेक्स्ट इज फुल ऑफ करेज। जो जिसके अंदर बहुत साहस हो, जो बहुत हिम्मत वाला हो, उसको क्या बोलेंगे? करेजियस। सो राइट द स्पेलिंग ऑफ करेजियस, COURAGEOUS, courageous. Is it clear? So these are your adjectives. So write them properly. Don't do spelling mistakes and watch the complete video so that you can understand about all the adjectives. Okay? 4 पार्ट्स में बेटा आपका वीडियो, ये आपका कंप्लीट, ये जो आपका चैप्टर है एडजेक्टिव, वो कंप्लीट हो पाया है। तो आप सभी वीडियोस अच्छे से वॉच करिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आप सारे वीडियोस, सारे पार्ट्स अच्छे से देखेंगे, तभी आप सारे एडजेक्टिव्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनको एग्जाम में प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द एडजेक्टिव्स। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।